Hi, this is Neha. Let's start with the weekly tarot card reading. Uh, I'm going to start with Aries and I will read for all the zodiac signs one by one. And I truly wish I will read positive things for you all. Let's start. Let's start with Aries. The card for Aries this week is Six of Cups. Six of Cups is a very positive card, लेकिन साथ साथ in the Six of Cups there is an indication of balance. Balance means you will earn good, you are earning good, but अगर आप उस earning में से कुछ भी share नहीं कर रहे हैं to your partners, to your family members who are well deserved आपकी इस जर्नी में who are very cooperate who were very cooperative, but आप उनके साथ जितना आपको शेयर करना चाहिए वेल्थ उतना नहीं शेयर कर रहे हैं. So these things then will create problem फॉर यू. आपको बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते प्लीज़ जो भी आप अर्न करें पे अ ग्रैटिट्यूड एंड बी रेडी टू शेयर इट विद द पीपल हु मैटर्स टू यू. विद योर पार्टनर्स प्लीज़ अपनी डील अपना जो भी शेयरिंग रेशो है उसको एकदम फेयर रखिए. नो चीटिंग एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प लेस फॉर्चुनेट्स. Try to donate as much as you can. It will definitely increase your wealth, increase your luck, and increase your amount of blessings. Um don't be carefree, okay? Don't be like अभी हम लोग अच्छे फेज़ में चल रहे हैं तो मुझे इधर उधर की कोई फ़िक्र नहीं है, तो ये केयरलेसनेस एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए. बी विजिलेंट. दिस इज़ क्लियर दैट यू आर राइट नाउ यू आर एट अ गुड प्लेस, बट आगे इट मे बी देयर कि आपकी इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यू मे डू समथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ. Please listen to your well-wishers, your friends, your family members, anyone, okay, whom you trust, जो आज तक आपको एक अच्छी एडवाइस देते आए हैं. यूज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस से जो आपने अपने देखा है अभी तक लाइफ के बहुत कुछ देखा है, उस एक्सपीरियंस को प्लीज़ आगे की जर्नी में यूज़ करिए. The next card is for Taurus. The card for Taurus is of Three of Swords. Please do lots of walking and exercise for those who are having cholesterol issues and any heart issues. Please take care of your health. Don't invest in anything जो आपको कोई बिग अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको टेंशन डिप्रेशन दे एंड आपकी हेल्थ अफेक्ट हो. डोंट ओवर ट्रस्ट पीपल, ओके? ट्रस्ट ओनली दोज who are very near dear to you and over trust किसी पे भी ना करें. If you are in any legal case regarding ancestral property, this week will indicate little bit of challenges in that. So be prepared and legal advice जो है वो अच्छी लें. अपनी नॉलेज और अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ को पॉजिटिव रखें. इट विल रियली हेल्प यू टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर new ways of earning wealth and which will be good for you. So obstacles थोड़े से it may be there कि हों, but with your positive thoughts you will be able to
uh, sail through this week. Okay, it's an average kind of a week for you. um, the next is for Gemini. It's a very beautiful card, especially related to fertility and care. So, Empress is a major arcana card, and it is giving a very strong message of that please start caring the both of your actually both of your cards are of female figures, very strong cards, Empress and Queen of Wands. So the female members, the female Geminis, this is your week. You will be able to control well. You will be able to handle things very skillfully. Okay, uh, you're a kind of a person जो इस वीक जो भी एडवाइस देंगे इट विल टर्न इनटू पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो इस हफ्ते आपके तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन है कि अपने आप को पैम्पर भी करें नेचर के साथ, थोड़ा कहीं घूमने जाएं, नेचर में बैठे, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स इन अ पार्क और गो फॉर अ वॉक. इट विल एनहांस योर मेंटल पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से आपको औरों को भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे. बी विजिलेंट. अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके पास आएंगी फॉर दोज हु आर वर्किंग, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको कैसे ग्रास्प करना है ये आपको इस हफ्ते बहुत अच्छी तरीके से आएगा भी, एंड यू विल बी एबल टू. सो दोज हु आर प्लानिंग फॉर engagement kind of a thing, or formalizing any kind of a relationship, this is a very good week. Those who are planning for a baby, they will hopefully get a news. This is an indication from the cards. So all in all, it's a wonderful week for Gemini. The next is for Cancer. Let me shuffle my cards first. The card for Gemini is of Knight of Swords. Both are the male figures. Okay. So Knight of Swords is a kind of a grey card. It actually depends on the situation. Those who are those who are working towards a specific goal, कोई एक लक्ष्य है जिसके पीछे आप काम करे जा रहे हैं. दिस इज़ अ टाइम कि आप रुकें, प्लान करें, क्योंकि ये जल्दीबाजी में चीज़ें जो हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके हाथ से जो है वो छूट रही हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से आपको कनेक्ट होना है जो छूट रहा है. तो प्लीज़ स्टॉप एंड थिंक कि आपके लिए क्या बेस्ट है, किस रास्ते आप जा रहे हैं. थोड़ा सा लैक ऑफ डायरेक्शन. सो प्लीज़ रुकें, प्लान करें एंड देन आगे बढ़ें. ऑन द अदर हैंड दिस कार्ड शोज़ कि यू नीड टू स्पीडन अप. अगर आप स्लो चल रहे हैं, लाइक इफ कोई आपने एक डेडलाइन रखी हुई है या आपको कोई एक डेडलाइन मिली हुई है, तो ऑफिस में स्पेशली, तो आप स्लो चल रहे हैं, प्लीज़ स्पीड अप करें चीज़ों को, एंड अपने थॉट्स और आइडियाज़ को और फ्री करें और एक्सप्लोर करें और डिस्कस करें, नए लोगों से मिलें. सो यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो आपकी लो स्पीड की वजह से आपको हो रहे हैं. सो दिस इज़ एन इंडिकेशन, हो सकते हैं. समथिंग इज़ देयर विच इज़ अब जिससे आपको आगे बढ़ना है. थोड़ा सा आप
पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अगर आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ों की तरफ काम कर रहे हैं जो अब इतना ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं दे रही है, बट उम्मीद में आप करे जा रहे हैं, करें। दिस इज़ द टाइम कि आप उस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज़ करें और आगे नए सिरे से नए डायरेक्शन में नई होप के साथ बढ़ें, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज़ फॉर लियो, हार्ड वर्क। लियो, इस वीक जो है आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ये देखना है कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है, जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वो आपको सही इस डायरेक्शन में मिल पाएंगे या नहीं। मेहनत आपको बहुत करनी है, थोड़ा सा फाइनेंसेस को संभाल के चलें, थोड़ा सा अपीयरेंस पे ध्यान दें, अपनी ड्रेस वेल, स्मार्टली ड्रेसअप करें, इट विल लीव a good impression. So and if anything related to property आप लेना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम कि आप बैठें और सोचें कि आपको कितना और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और आप कैसे अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं। इफ़ यू आर इन सम लोन और आप लेने की सोच रहे हैं तो द आई ड्रू अ क्लैरिफाइंग कार्ड ऑल्सो, जो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। नई शुरुआत, नई क्रिएटिविटी से भरा है। जितना क्रिएटिव आप रहेंगे, जितना हेल्पफुल आप रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों की तरफ आप हाथ बढ़ाएंगे, उतना ही आप ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल वीक। अगर आप कुछ भी क्रिएटिव प्लान करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग टू प्लान अ बेबी, दिस इज़ अ वंडरफुल वीक। The next is for a Virgo, Seven of Pentacles. Okay, Virgo, this is the week कि आप यील्ड करें जो आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स के प्लान करें। द कार्ड इज सेइंग कि अभी फॉर दिस वीक इन्वेस्ट करें ना, प्लान अच्छा करें। दिस इज़ अ गुड वीक फॉर प्लानिंग एंड यील्डिंग रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स। सो अ गुड वीक। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को टर्न करें, डिविनिटी की तरफ अपने आप को टर्न करें, मेडिटेट करें। यू विल डेफिनेटली बी एबल, बिकॉज बोथ ऑफ योर कार्ड्स आर ऑफ नंबर 7 केतु, एंड डेफिनेटली डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आगे की प्लानिंग के लिए यू आर हैविंग मैनी चॉइसेस। प्लीज़ उसमें से बेस्ट जो पिक हो, जिसमें आपका तो फ़ायदा हो लेकिन किसी और का नुकसान ना हो, प्लीज़ पिक दैट कार्ड। डोंट टर्न ग्रीडी, लालची ना बने, किसी तरह का बैड थॉट अपने अंदर ना आने दें। यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बट ये ना सोचे कि अभी तक मैं जितना सोच रहा था उतना मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लेट मी ट्राई समथिंग जो आप which is not very right thing to do. So be careful of that, and it's a good week for you. The next is of Libra. The card for Libra is of balancing, जो अक्सर Libra का आता है, and Libra itself sign of balancing. So hopeful रहें, होपलेस ना हो शुरुआत के हर्डल्स को देख के। जस्ट यू नो थोड़ा ब्रेक लगा के प्लान कर के ही आगे बढ़ें। अपने एक्शंस पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। व्हाट यू विल डू द बेस्ट। ओके, बी सेंसिबल कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। फाइनेंसेस थोड़े ऊपर नीचे होंगे, जगल करेंगे, माइंड में थॉट्स भी थोड़े ऊपर नीचे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। डोंट वरी, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन एवरीथिंग। लाइक आप जो पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपको कब वर्क करना है, कब रेस्ट करना है, प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स।
The next is of Scorpio. The card for Scorpio is very positive sun. Again a major arcana card. And I drew a clarifying Ten of Wands. सन इंडिकेट करता है एक न्यू बिगिनिंग को, एक ज़िंदगी में एक स्टेज, एक लाइफ साइकिल, एक साइकिल के ख़त्म होकर एक नए साइकिल की शुरुआत के लिए. गुड वीक, वंडरफुल वीक. You will be positive, you will be high on energy. थोड़ा सा प्राउड और सेल्फ प्रेज को कम करें. माइंड योर टंग. बी ट्रांसपेरेंट विद द पीपल. कुछ जो आपके अपने हैं उनसे कुछ हाइड करने की कोशिश ना करें. जस्ट बी ऑनेस्ट एंड डेफिनेटली अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग विल बी देयर फॉर यू. इट मे बी देयर कि आपको फीलिंग हो कि आप ओवरबर्डनड हो गए हैं बिकॉज यू हैव सम एम्स अचीव करने के लिए. तो ये ओवरबर्डनड हो गए हैं, लेकिन आप पता नहीं कैसे अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे. मे बी दिस काइंड ऑफ फीलिंग कम्स, बट यू विल डेफिनेटली बी देयर. बोथ ऑफ योर कार्ड्स आर ऑफ सन एंड इट्स ब्यूटिफुल. एनर्जी को लूज मत होने दीजिए, हाई और एनर्जी रहिए डेफिनेटली. एंड प्लीज़ प्राउड को अपने अंदर जो है वो ना आने दें. The next of our card is of Sagittarius. Both of your cards is related to your family. This week, family will be your priority. Your spouse, your kids will be at a will be in a good mood. They want to spend time with you, and you also want to spend time with them. So थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए चीज़ों को, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक्साइटमेंट में जो है वो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या थोड़ी सी कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन इरिटेशन का एक वो आ जाए. तो प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन यू टू. अ वंडरफुल वीक फॉर सेजिटेरियस. द नेक्स्ट ऑफ माई कार्ड इज़ फॉर Capricorn. The card for Capricorn is of the moon, and I drew a clarifying card which is of Three of Cups. अगर आप get together कर रहे हैं, especially in your office, please अल्कोहल कम लीजिए. इट विल लीड टू द टॉक्स या कुछ ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसा मैटर जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है विच इज़ नॉट वेरी गुड. आप थोड़े से परेशान, थोड़े से डिप्रेशन में हैं. यू आर फीलिंग समथिंग, जिसे बोलते हैं एक सिक्स सेंस के आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है या पीछे कुछ हुआ है, उसके लिए लेके आप बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में हैं. सो प्लीज़ अल्कोहल को अपना रास्ता ना बनाएं. लोगों से मिलें, लोगों से बात करें. यू विल फील बेटर. एंड प्लीज़ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें. देयर इज़ अ वे जो आपके आसपास ही है, और आप अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना उठेंगे बैठेंगे, यू विल गेट ओवर इट, एंड आप ज़रूर सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे. सो इट्स अ गुड वीक फॉर कैप्रिकॉर्न. The card for this is for Aquarius. The card for Aquarius is Knight of Pentacles and Nine of Wands. फाइनेंशियली स्टक्ड हैं आप, रिलेशनशिप में भी कहीं स्टक्ड फील कर रहे हैं, पर दिस वीक थोड़ा सा आप यू विल बी एबल टू मूव अहेड. जहाँ पे आप हैं उससे थोड़ा सा आगे प्रोटेक्ट करके अपने को चलिए कि आगे आप मेजर लॉसेस फाइनेंसेस में ना बियर कर पाएँ. दोज हु आर स्टक इन अ रिलेशनशिप विल try to communicate, but still it is there कि it will remain in confusion कि how to move further. So all in all it's a week जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है. Please try to get the message, and you will meet some person who is very strong. या आप अभी मिले हैं किसी से जो बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंसेस के मामले में, तो आप स्टक ना हो.
उसकी हेल्प से आगे निकलने की कोशिश करें और थोड़ा सा सोच समझ के जो है इस वीक आप आगे बढ़ें। द लास्ट इज ऑफ Pisces. Okay, the Pisces card for Pisces is Ace of Swords and Hermit. Ace of Swords जो है ये क्रिटिकलिटी को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। सिचुएशन क्रिटिकल है लेकिन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जो आप लेने चाह रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं पा रही है। दिस वीक यू विल श्योरली गेट दैट क्लैरिटी। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर भी करिए, जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं सामने वाले के लिए क्या वो ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ वीक दैट इज़ इंडिकेटिंग कि पुराने जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल इमर्ज एज अ न्यू पर्सन जो आगे बहुत अच्छे से, बहुत मेच्योरिटी से अपने मैटर्स को हैंडल कर पाएगा। सो इट्स अ गुड वीक। So this is all tarot for this week. I hope you enjoy and I wish you all the best. Thank you.